You all will be made to sit in a hall where you will be shown 12 slides, out of which 11 will be pictures that will be shown to you for 30 seconds. मतलब each picture will be shown to you for 30 seconds and then you have to write a story on it, around it in 4 minutes. So it's basically 30 seconds, a picture and then 4 minutes to write the story. Hello everyone, welcome to SSB Kurukshetra, and we have Miss Nandini Dwivedi with us from SSB and AFSB both. So ma'am, my first question would be, how is exactly TAT done or performed in the SSB? Let's throw some light on that first. Okay, so Divya, as the TAT stands for Thematic Apperception Test. Apperception is basically a scientific term for your perception, how you are perceiving things around you. And in this TAT, the stimulus is in the form of a picture. एक picture दिखाई जाती है and then you have to observe that picture very closely and you have to perceive something around. You have to look at the background, foreground and सारी चीजों को detail में observe करने के बाद you have to tell me your perception in the form of story. Basically, it's a story writing test जिसका एक stimulus है in the form of picture and you have to perceive it as per your accordance. आपके अपने opinions, thought, feelings, your aspirations, ये सारी चीज उससे reflect होगी. So this test is conducted on the very first day of the SSB. So this test is conducted right after your screening. Matlab, this is the first test that you will be going to do after the screening process, that is your stage 2 process. You all will be made to sit in a hall where you will be shown 12 slides, out of which 11 will be pictures that will be shown to you for 30 seconds. Matlab, each picture will be shown to you for 30 seconds and then you have to write a story on it, around it in 4 minutes. So it's basically 30 seconds, a picture and then 4 minutes to write the story. This process will continue until your 11th picture is done and the 12th slide will be a blank picture. Matlab, it's a black screen and then you have to formulate a story from your life, from your personal experiences, your past experiences, and that is how this TAT is done. So ma'am, we understood how TAT is done, how it is performed, but can you tell us what exactly do the assessors test from TAT? As a candidate, if I'm writing those 12 pictures, what am I being tested upon from this? Like SSB के perspective से देखें ना, so every test is designed scientifically and the only motive is to gauge those 15 OLQs in you. वो जो 15 ऑफिसर लाइक क्वालिटीज हैं आपके अंदर, उसकी मेजरमेंट करी जा रही है, उसको गेज किया जा रहा है कि हाँ, मेरा बच्चा का जो मेंटल स्टेमिना है वो अच्छा है नहीं है, उसकी रीजनिंग एबिलिटी, उसकी इफेक्टिव इंटेलिजेंस. थ्रू दी स्टोरीज, थ्रू दी स्टिमुलसेस, ये वही चेक कर रहे हैं कि आपके अंदर वो 15 OLQs कितने मात्रा में है या नहीं है. अगर प्रेजेंट है तो कितनी है, नहीं है तो वो भी पता चल जाएगा उनको. सो बेसिकली द कंसेप्ट ऑफ दिस इमेजिन स्टोरीज, ये जो स्टिमुलस देके आपको बोला जा रहा है कि अपने एस्पिरेशन से, अपने एक्सपीरियंसेस से एक इमेजिन करके स्टोरी बनाओ, दिस इज बेसिकली डन to gauge the person's need and the dominant qualities in the character. मतलब the dominant qualities in that person, कि इस personality, इस candidate के अंदर कौन कौन सी ये qualities हैं. Are you a creative person? Are you a multitasker? आप क्या लोगों के साथ आपकी बनती कैसे है? How your group dynamics works? आप लोगों के साथ कैसे मिलजुल के रहते हैं? How good a leader you are? अगर आपकी लीडरशिप क्वालिटी है तो मुझे स्टोरीज के थ्रू दिख जाएगा. अब सिंपल सा एग्जांपल है, इफ अ पर्सन, उसने अपने स्कूल कॉलेज डेज में हमेशा ग्रुप एक्टिविटीज जो होती है उसमें पार्टिसिपेट किया है, ठीक है, सो उससे एक्सपेक्टेड है, उसने अगर अपने PIQ में लिखा हुआ है कि आई हैव पार्टिसिपेटेड इन दीज एक्टिविटीज एंड ही और शी हैज बीन द लीडर ऑफ सम ग्रुप एक्टिविटी, तो उससे एक्सपेक्टेड है जो लीडरशिप क्वालिटीज होगी वो ऑटोमेटिकली विल बी मोर ग्रिल्ड. सो उनसे एक्सपेक्टेड है, उन स्टूडेंट से जिन्होंने अपने स्कूल कॉलेज डेज में सारी एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट किया है, सो दे विल बी राइटिंग गुड स्टोरीज, गुड डिटेलिंग इन दो स्टोरीज एंड मेरे को एक कॉन्फर्मेशन मिल जाएगी, हाँ, यस, दिस पर्सन हैज डन दिस एक्टिविटी एंड ही इज राइटिंग एंड शोइंग मी in this story. So ma'am, as you said that we are always tested through this to know what is our approach. Basically, if I am the character, I'm the main character, and whatever actions I would be writing, I am reflecting how I would be reacting in those situations. So the similar way, we all practice for it, right? We all practice for PPDT, we all practice for TAT, for that matter. PPDT and TAT are a lot similar. So if I am a candidate who has practiced multiple pictures before my SSB, throughout my journey, and
I feel it's obvious, or it's a human nature, that there are certain set of ideas that I might keep associated to a particular situation. कि अगर मुझे rural background दिख रहा है, तो I might take it as a new concept where the people from the cities come for a rural lifestyle, just a day in it, a day spent well there. They make it a activity. So things like these, how should a candidate go about it? Is it a good thought to have a preconceived notion about a particular situation or a picture, ideas with me, or should I always think of a new perspective and look at every picture with a new idea every time I come up and write a story? So I'll answer this very simple. If you have practiced those ideas by your own, that means if they were your real ideas or your original ideas, then it is not an issue. लेकिन अगर आपने वो practice ही करी है by copying someone else's story, मतलब that idea has not originated from your mind, तो वो तुम्हारे thought process से नहीं आया, you have tried to copy someone else's idea. ठीक है? This is but natural, ये होगा ही that you will be seeing somewhat relatable pictures in your real SSB that you were practicing. अब इतने सारे sources हैं and people are practicing it, तो this is थोड़ा सा natural thing कि that हाँ कि वो लोग copy करने की कोशिश करेंगे. जो पहला stimulus आएगा उनके दिमाग में, the first thought will be their own idea. I don't see any harm in it. Like I have given 6 SSBs, so after 5th and 6th attempt ये होने लगा था मेरे साथ भी, that मेरे जो previous SSBs में जो pictures आती थी, they were repeating, the pictures were repeating themselves. So what I did was that कि जो मेरी पुरानी stories बनती थी, I used to write the same stories. I don't find any harm in it because जो earlier stories भी मैं लिखती थी, that was my idea, my thought, my life experiences. तो इस बार भी मैंने same लिख दिया. But problem तभी आ जाती है when you are doing that purposely, and even if the story is not fitting in the picture, people are trying and they are fighting hard to just fit that story in the picture. I think that is wrong. जबरदस्ती आपको अपने preconceived idea को किसी एक picture में लगाने की जरूरत नहीं है. If it comes naturally, then it's fine. बट डोंट डू इट पर्पसली. अदरवाइज यही होगा कि आपने जो ऑब्जर्वेशन करी है, जो आपने स्टिमुलस कैच किया है, वो एज पर दी रिक्वायरमेंट नहीं रहा है, एंड आपने जो आपका प्री कंसीव्ड आइडिया था उसको बेटर दिखाने के लिए आपने जबरदस्ती सुपर इम्पोज कर दिया. आई वोंट सजेस्ट दैट टू मेनी ऑफ आर, मतलब आई डोंट सजेस्ट दिस टू माई स्टूडेंट्स. सो आई थिंक ये करना भी नहीं चाहिए. So, ma'am, as you said that this is one of the problems which we see, that candidates tend to escape the negativity of the picture and they straight away try to bring something positive out of it. The similar way, where all do you feel students go wrong in TAT? What are the major mistakes that people tend to commit even now, even after having so much of knowledge out there? What is that one constant mistake or mistakes that you see in candidates doing in TAT right now? सो आई बिलीव दिव्या मेजर इशू जो बच्चे टैट में प्रॉब्लम करते हैं, एक तो पहली चीज, दे आर नॉट राइटिंग प्रैक्टिकल एंड सिंपल स्टोरीज. वो अपने हीरो को या मोदी समझ रहे हैं, मतलब मोदी जी समझ रहे हैं, या रजनीकांत समझ के उनसे एक्शंस कराए जा रहे हैं. दे बिलीव कि दैट वो एक दिन में गांव को शहर बना सकते हैं, ब्लैक मनी को व्हाइट मनी में कन्वर्ट कर सकते हैं. एसएसबी नॉट लुकिंग फॉर पीपल हु आर वेरी इम्प्रैक्टिकल. उनको रियल टाइम सिचुएशंस की सॉल्यूशंस चाहिए. ठीक है, कल को वॉर हुई, कोई भी अगर कॉन्फ्लिक्ट होता है, दे नीड पीपल जो उसका सोल्यूशन निकाल दे, ना कि बस बातें ही करेंगी हम ये कर देंगे वो कर देंगे. तो आई थिंक थोड़ा ग्राउंड लेवल पे उतर के उनको प्रैक्टिकल स्टोरीज, अपनी लाइफ से सिंपल स्टोरीज निकालने की जरूरत है. एंड सेकेंड इज जो वी वर टॉकिंग अबाउट अर्लियर, कि किसी पॉजिटिव स्टोरी में जबरदस्ती कुछ नेगेटिव घुसाना, या फिर अगर कुछ दिख रहा है कि सामने कोई प्रॉब्लम है, उसको इग्नोर करके एस्केपिज्म की तरफ बढ़ के एंड उसको इग्नोर करके एक अच्छी पॉजिटिव स्टोरी बना देना. तो दिस इज रॉन्ग. जो आपको स्टिमुलस दिया है, द मोटिव बिहाइंड द स्टिमुलस जो है, आप उसको फुलफिल करिए. अगर आपको बोला जा रहा है कि हाँ अगर सामने डेथ है तो मेक इट अ डेथ. अब उसको जबरदस्ती तुम ये बोल दो कि वो एक्टर है, उसका कोई मूवी का या थिएटर का सीन चल रहा है, कोई मर्डर हो रखा है, तो तुम बोल दो वो पेंटिंग बना रहा है मर्डर करते हुए. दिस इज रॉन्ग. एस्केपिज्म नहीं शो करना है. यू शुड टेक द स्टिमुलस एज इट इज एंड देन यू हैव टू मूव फॉरवर्ड. एंड आई थिंक लास्टली आई वुड से इज योर the detailing. People are not focused on detailing nowadays. They are writing actions, लेकिन उसमें डिटेलिंग नहीं है. आप जितना डिटेलिंग अपनी स्टोरी में डालेंगे, आपकी जो स्टोरी का क्वालिटी है दैट विल इम्प्रूव ड्रास्टिकली. बाय डिटेलिंग आई मीन लाइक फॉर एग्जांपल यू आर गोइंग फॉर अ ट्रिप. अब ट्रिप से जाने के लिए ऐसा नहीं होता ना, एक दिन यू हैव डिसाइडेड कि ट्रिप पर जाना है और आप नेक्स्ट डे ट्रिप पर चले जाओगे. आप अपनी रियल लाइफ देखो, आपके फ्रेंड्स के ग्रुप में यही होता होगा ना, कितने ट्रिप आपने प्लान करे होंगे, कैंसिल हो जाते होंगे एंड मोमेंट. यू टॉक अबाउट दैट थिंग ना, दैट इज व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग फ्रॉम यू, कि हाँ आपने एक महीने पहले से यू डिसाइडेड, आपने
डेस्टिनेशंस देखी, आपने डिसाइड किया, अपना बजट डिसाइड किया हो, तो टेल मी दी बजट. अगर एक स्कूल स्टूडेंट जा रहा है ट्रिप पर तो उसका बजट डिफरेंट होगा, एक कॉलेज स्टूडेंट जा रहा है उसका अलग होगा, बिकॉज उसके खर्चे अलग होंगे. इफ यू आर अ वर्किंग कैंडिडेट, अगर आप बताइए कि हाँ प्रोफेशनल अगर आप हैं तो आप इतना बजट लेकर चलेंगे, यू विल नीड हॉलीडेज फ्रॉम योर ऑफिस, आप उसलिए अपना वर्कलोड है उसके हिसाब से मैनेज करेंगे एक हफ्ते से. तो दीज आर ऑल द डिटेल्स आई थिंक स्टूडेंट शुड फोकस ऑन व्हाइल राइटिंग देयर स्टोरी, एंड ये ड्रास्टिकली आपकी क्वालिटी ऑफ द स्टोरीज को बढ़ा देंगे, एंड ऑब्वियसली इट विल ऑल्सो चेंज योर रिजल्ट. Understood, ma'am. So, ma'am, I often come across this one thought where students ask us that, ma'am, what if I'm unable to complete all the 12 stories? Because as we all know, you said that there would be 4 minutes given to write the story and 30 seconds to watch the story. Supposingly, I was in a hurry, I couldn't complete, my handwriting was slow, and I couldn't complete a certain story. I had to skip it and I moved ahead. And there were few bits and pieces where my stories were left incomplete. What would be the impact of it in the overall holistic approach of the assessor towards me? ठीक है. सो इफ यू आर राइटिंग 12 स्टोरीज एंड उसमें से होता है कि एक दो स्टोरी आप कंप्लीट नहीं कर पाए, ठीक है, कंप्लीशन इज डिफरेंट एंड अटेम्प्ट करना इज टोटली डिफरेंट. आपने आउट ऑफ 12 दो तीन स्टोरीज एकदम ब्लैंक छोड़ दिया, यू हैव नॉट राइट एनीथिंग. ना आपने स्टार्ट किया है स्टोरी लिखना, मतलब अगर आपने स्टोरी लिखना स्टार्ट ही नहीं किया मतलब मुझे आपका थीम नहीं पता, व्हाट यू वर थिंकिंग, आपने उसको कैसे परसीव किया है. अगर आप मुझे स्टोरी का इतना पार्ट भी लिख देना सो दैट मुझे आपका थीम पता लग जाए कि हाँ दिस इज व्हाट यू हैव ऑब्जर्व, ये आपने परसीव किया है, ये आपकी ऑब्जर्वेशन है, देन यू आर राइटिंग इट. आप एक बार को इनकम्प्लीट छोड़ दें उसको, आपने वो कंप्लीट नहीं कर पाया, आपका कंक्लूजन नहीं आया स्टोरी का, दैट इज फाइन फॉर मी, क्योंकि आई ऑल्सो अंडरस्टैंड ना कि टाइम इज कम, इट इज रेस अगेंस्ट टाइम एंड स्पेस, आई अंडरस्टैंड. लेकिन ये नहीं होना चाहिए कि दैट आउट ऑफ 12 स्टोरीज यू हैव लेफ्ट 3-4 स्टोरीज ब्लैंक. एक आधी स्टोरीज इनकम्प्लीट होती है, चलता है, आई कैन अंडरस्टैंड, असेसर्स आर ऑल्सो देयर, इतना लेवरेज आपको मिलेगा, बट हाँ एट एनी पॉइंट ये नहीं हो सकता, आई विल नॉट एक्सेप्ट इट और टेक इट कि आपने स्टोरी ही ब्लैंक छोड़ दी. अब दिस इज योर मिसमैनेजमेंट ऑफ टाइम, एंड ऑल्सो दैट मे बी यू वर नॉट एबल टू ग्रैब दी, आपकी बेसिकली लैक ऑफ ग्रास्प हो गया, आपने उस पिक्चर को, उस स्टिमुलस को आप ऑब्जर्व ही ढंग से नहीं कर पाए, परसीव ही नहीं कर पाए, एंड यू वर सो ब्लैंक. एक ऐसी सिचुएशन में आपको, इतनी अनकंफर्टेबल सिचुएशन में आपको डाल दिया गया विद दैट स्टिमुलस दैट आप उसको परसीव ही नहीं कर पा रहे हो. दिस विल टेल मी दैट हाँ यू लैक मेंटल स्टेमिना, विच इज रॉन्ग. ये नहीं हो सकता ना, आपको तो आने वाले टाइम में फौज के लिए, वॉर लड़ने के लिए भी जाना पड़ेगा. You can imagine the amount of pressure you will be in, ठीक है. नाउ उस सिचुएशन में अगर आप ब्लैंक हो जाएंगे, आप जो भी आपको स्टिमुलस मिल रहा है, जो भी आपसे कहा जा रहा है, ऑर्डर्स दिए जा रहे हैं, या फिर आपको वो ऑर्डर्स आगे पास ऑन करने हैं, तो आप ऐसे ब्लैंक नहीं हो सकते. दिस इज अगर ये है तो मुझे आप नहीं चाहिए, सिंपल सी बात है. सो प्लीज मेक श्योर दैट एनीवन इज नॉट लीविंग द स्टोरी इंटायरली ब्लैंक. यू स्टार्ट राइटिंग योर स्टोरी, ठीक है. अगर आपने पूरा, हाँ ये नहीं करना है, मिसमैनेजमेंट भी नहीं करनी है कि आप पुरानी वाली स्टोरीज ही कंप्लीट करते रह गए हो. सीन पीपल स्ट्रगलिंग इन दिस थिंग दैट उनको जो नई स्टिमुलस आता है, जो नया पिक्चर आई है, वो उसको बाद में लिखना स्टार्ट करेंगे, वो सोचते हैं कि मैं पहले वाली स्टोरी कंप्लीट कर लेता हूँ. डोंट एवर डू दैट. जो डेजिग्नेटेड टाइम जिस एक्टिविटी के लिए आप प्लीज उसी को लगाइए. आई हैव ऑल्सो सीन कि बच्चे एसआरटीज छोड़ के टैट की स्टोरीज कंप्लीट करने लग जाते हैं, विच इज ऑल्सो टोटली रॉन्ग. आपको 4 मिनट्स दिए गए थे टू राइट दी स्टोरी, आप उसी 4 मिनट में आपसे जितनी लिखी जा रही है आप लिखो, ठीक है. डोंट बॉदर कि मुझे स्टोरी कंप्लीट करूंगा तभी मेरी स्टोरी अच्छी होगी. एक बार अगर मुझे स्टोरी पढ़ने से, आधी या आपकी 75% ऑफ द स्टोरी पढ़ने से अगर ओवरऑल स्टोरी का जिस्ट पता लग जाता है ना, तो यू आर गुड टू गो. डोंट बॉदर अबाउट इट, हाँ, बट नेवर लीव योर स्टोरी ब्लैंक. Understood, ma'am. So, ma'am, coming to the final question, what are the tips or the strategies that you would like to give to all the students who have their upcoming AFSPs and SSPs when it comes to TAT? Okay, so only advice and tip, not only, few advice and tips from my side would be: A, please write simple, practical and realistic stories. ठीक है, you're not living in this la la land कि आप बस चुटकी करी, मतलब you have that शकला का बुम बुम वाली पेंसिल and you'll draw something and that will happen. ऐसा नहीं होगा ना. आपके पास डोरेमोन जैसा दोस्त है कि आप एनीवेयर डोर खोलोगे, आप कहीं से कहीं चले जाओगे, एंड दैट विल हैपन. तो वो प्रैक्टिकलिटी कभी लूज नहीं करनी है अपनी स्टोरी में. ए, एंड सेकंड आई वुड से ऑलवेज पुट योरसेल्फ इन दैट सिचुएशन, ठीक है. उससे यू विल रिलेट मोर टू द स्टोरी. आप अपनी पर्सनालिटी बेटर वे में रिफ्लेक्ट कर पाएंगे. और आई विल से ऑन द टर्म्स ऑफ द एसएसबी, आप अपना PIQ बेटर उसमें रिफ्लेक्ट कर पाएंगे इन योर स्टोरीज. सिंपल सी बात है, अगर मैंने अपने कॉलेज एंड स्कूल डेज में स्पोर्ट्स
खेले हैं स्पोर्ट्स में, दैट टू आई हैव प्लेड आर्चरी एंड हैंडबॉल, एंड कभी भी मुझे कोई भी स्टिमुलस आएगा रिगार्डिंग स्पोर्ट्स, मेरा फर्स्ट रिस्पॉन्स होगा यही कि मैं आर्चरी या हैंडबॉल, डिपेंड्स पिक्चर से क्या रिलेट कर रहा है, उसी स्पोर्ट पर अपनी स्टोरी बनाओ, एंड मुझसे ये एक्सपेक्टेड भी है। अगर मैं ये ना करके मैं एक ऐसा थर्ड स्पोर्ट उसमें घुसा दूं जो मैंने आज तक किया ही नहीं है ना, वो मेरे कहीं भी जो मेरा स्पोर्ट्स वाला सेक्शन है NDPI की उसमें मैंने नहीं लिखा, देन इट विल बी यार लाइक हाँ यार इसको तो पता नहीं इसने क्यों बनाई है इस पर स्टोरी, एंड ऑब्वियसली उस स्टोरी में मैं ज्यादा डिटेलिंग भी नहीं कर पाऊंगी बिकॉज आई हैव नो एक्सपीरियंस, आई हैव जीरो एक्सपीरियंस अबाउट दैट गेम और अबाउट दैट स्टोरी, सो इट्स बेटर टू पुट योरसेल्फ इन दैट सिचुएशन, इन दैट कंडीशन, एंड देन आपके लिए जो एक्शंस, जो स्टोरी लिखना, स्टोरी का फ्रेम बनाना विल बी वेरी इजी। एंड थर्ड आई वुड से ऑलवेज चूज शॉर्ट टर्म गोल्स फॉर योरसेल्फ, शॉर्ट टर्म गोल्स इन द सेंस कि आप वो एक छोटे लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम में कंप्लीट कर पाए। अगर मैं एक पर्टिकुलर रेंज दूं तो इट वुड बी लाइक 4 to 6 मंथ मैक्सिमम। ऐसा नहीं हो सकता कि आप 2 साल 3 साल का एक 5 ईयर प्लान लेकर चल रहे हैं, 3 ईयर प्लान लेकर चल रहे हैं कि मेरा हीरो ये करेगा अपनी लाइफ में एंड देन उसको अचीव करवा दूंगा, मेरा काम हो जाएगा। नो, ठीक है, आई हैव सीन पीपल राइटिंग कि बच्चा 12th में है, 12th से ही उसको यूपीएससी करना था तो उसने बीए करा उस सब्जेक्ट में, देन ही स्टार्टेड प्रिपेयरिंग फॉर यूपीएससी प्रीलिम्स, प्रीलिम्स क्लियर हो जाता है, वो मेंस की तैयारी करता है, मेंस क्लियर हो जाता है तो इंटरव्यू की तैयारी, इंटरव्यू कर लेता है, लबासना चला जाता है ट्रेनिंग के लिए, एंड देन फाइनली फर्स्ट पोस्टिंग। अब यू इमेजिन योरसेल्फ, आप सोचो इस चीज को यार, आफ्टर 12th लबासना एंड देन पोस्टिंग, फर्स्ट पोस्टिंग, इट्स अ लॉन्ग पीरियड, ठीक है। मुझे अगेन 5 ईयर प्लान नहीं जानना तुम्हारा, यू टेल मी, आप सिंपल रखो ना, आप चलो ठीक है, यू कैन ईदर डू कि आप प्रीलिम्स की तैयारी करा दो अपने हीरो से एंड यू टेल मी द एक्शंस कैसे उसने तैयारी करी, या फिर एक स्टेप उसको आगे लेकर जाओ कि प्रीलिम्स ऑलरेडी क्लियर है एंड नाउ ही इज प्रिपेयरिंग फॉर मेंस, आंसर राइटिंग की जैसे प्रैक्टिस करनी है, कैसे नोट्स बनाने हैं, कैसे रिवीजन करनी है, यू टेल मी दैट। तो ऑलवेज चूज लॉन्ग शॉर्ट टर्म गोल्स ओवर लॉन्ग टर्म गोल्स। And lastly, I would say is don't incorporate unnecessary problem in your stories. Always find a purpose, a better purpose. Problem and purpose में difference होता है, I've already talked in this video earlier. आप please ध्यान रखिए, एक problem and purpose में difference है, ठीक है। problem है आप जबरदस्ती create करेंगे, I understand आपका हीरो कर भी लेगा, but आपको उस पर फोकस नहीं करना, एक टारगेट दो अपने हीरो को, एक पर्पस दो, and in the following story वो उस पर्पस को अचीव करेगा। So that was all for today, guys. We could gauge and try to cover all the perspectives we could about that. If you have any other query regarding it, if you want to discuss a story with us, you want us to help you out with whether you're going on the right track or not, you can comment down below and our team will contact you, or you can contact us on the below given numbers. So thank you so much for watching this video. If you liked our talks, then do like and subscribe the channel, and we will upcome with the new video on every perspective of SSB we can. Thank you. Also guys, all those who feel that right now you have some time and you want to gauge कि आप right track पर हो या नहीं, we have a initiative which is on Telegram. The name of the group is Savda Group, and if you want, we will put the link in the description. You can join the Telegram group where recommended candidates and Sanjay Sir's team, they always provide 5 SRTs, 5 VATs and 1 story every day. It's a series. Every day the new words, new picture and new SRTs would be shared. You just have to assign or reply on the stimulus and you would be responded. You would be responded on how you wrote it, on the problem areas where you can work and the improvement areas straight away from the people who have been recommended multiple times. So this is a way where we can help you out. If you want to know more about it, either contact us or you can go to our page and look up for the link. चलो ब्रो, तो डांस से स्टार्ट होना है तो करना 1 2 3 ऐ मेरे दिल तू Are you asking for it? Dying for it? पूजा, you cannot kick it by mistake. ये तो ये बाल एक साइड से आगे एक से पीछे है, इसको आगे यार भाई मारो मुझे मारो सुंदर लग रही है, मतलब बढ़िया है। क्या गार्डन अभी कुटाई करनी पड़ेगी, बहुत हो रहा है आपका। अच्छा ठीक है। मजा आया।